Good morning, dear students. I hope you all are fine, having a good time at your homes. Study well, students. Today we will start the second chapter of our English grammar book, that is nouns, kinds of nouns, basically. So, students, before starting, I want to clear a confusion of you people. You students were asking that which exercises are to be done in the book and which are to be done in the copy. So, as for the first chapter, I have already told you, and see, the exercises which have spaces beside the book are to be done in the book, beside in the book are to be done in the book, and the exercises which like rewrite the sentences, rearrange the sentences, and write all those exercises you will do in copy, which do not have spaces given in book itself. Okay, so I hope I am clear. The last PDF that I sent of exercise 11, 12, 13 and 14 on page 6, all four of them are to be done in the book only. So now we'll start with kinds of nouns. So all of us know what are nouns. Nouns matlab संज्ञा, ठीक है? We all know that noun is the name of a person, place, animal or thing. Naming words are called nouns. We all know that, right? So there are 5 kinds of nouns. The first kind is proper nouns. Second is common nouns. Third is collective noun. Fourth is material noun. And fifth is abstract noun. So we'll study about the kinds of nouns today. Let us look at the first one, that is proper nouns. Proper nouns are words that represent a particular person, place, animal or thing. Proper noun क्या होता है? Proper noun वो nouns होते हैं जो किसी particular मतलब किसी specific person, place, animal या thing को denote करें, ठीक है? For example, जो मेन जो नाम होता है इन पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का, उसको डिनोट करे. फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन इज अ वर्सेटाइल इंडियन एक्टर. तो यहाँ पे एक्टर भी नाउन है, इंडियन भी नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है यहाँ पे, लेकिन अमिताभ बच्चन, यहाँ पे हम किसी एक्टर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टर की बात कर रहे. हु इज दैट एक्टर? अमिताभ बच्चन. सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. Next example is my dog Spotty loves to play with the ball. In this sentence dog भी noun है and ball भी noun है, लेकिन dog का नाम क्या है? Spotty. The name of the dog particularly is Spotty. So Spotty is a proper noun. Third example is Mr. Pranab Mukherjee, the president of India, lives in Rashtrapati Bhavan. So Mr. Pranab Mukherjee is the name of a person. India is the name of a place, country, right? And Rashtrapati Bhavan is also the name of a place. ठीक है? तो जो एग्जैक्ट जो नाम होता है, आपका नाम, मेरा नाम, या फिर किसी जगह का नाम, या फिर किसी पर्सन, किसी थिंग का नाम, या फिर किसी एनिमल का नाम, वही होते हैं प्रॉपर नाउन्स. The fourth example is the spacecraft Columbia, in which Kalpana Chawla traveled, ended in disaster. ठीक है? तो spacecraft भी noun है, ठीक है? Columbia, that is also a noun, ठीक है? Columbia एक जगह है, ठीक है? It is a name of a place. And Kalpana Chawla, it is the name of a person, ठीक है? So in which Kalpana Chawla traveled, ended in disaster, ठीक है? So अब आई होप इतना प्रॉपर नाउन का जो बेस है वो आपको समझ में आया होगा. एंड प्रॉपर नाउन्स की एक और खासियत होती है कि दे आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है? जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ठीक, फिर आता है हमारा कॉमन नाउन्स. तो कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट कॉमन पीपल, प्लेसेस, animals or things of the same class or kind. Common nouns जैसे अगर हम कहते हैं dog, ठीक है? So the second example in proper nouns, my dog Spotty loves to play with a ball. ठीक है? तो यहाँ पे dog भी noun, Spotty भी noun and ball भी noun. ठीक है? लेकिन Spotty is the name of the dog, so it is a proper noun, and dog and ball they are just name of things. ठीक है? ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डॉग का जब तक नेम नहीं दिया रहेगा तब तक वो
कॉमन नाउन होगा, ठीक है। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स में देखिए, माई डॉग स्लीप्स इन हिज केनल एट नाइट, ठीक है। केनल इज अ प्ले हाउस फॉर अ डॉग, ठीक है, वे डॉग्स लिव, ठीक है। तो माई डॉग स्लीप्स इन हिज केनल एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग एक कॉमन एनिमल की बात हो रही है ना, देयर आर मेनी डॉग्स, हम किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कर रहे हैं एक्चुअली माई डॉग, बट इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डॉग, ठीक है। सो इसीलिए डॉग यहाँ पे कॉमन नाउन है। फिर केनल, केनल इज़ अ प्लेस वेयर डॉग्स लिव, तो केनल भी यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन है। फिर नाइट, नाइट भी हम ठीक है, किसी पर्टिकुलर नाइट की तो बात नहीं कर रहे, या किसी नाइट का या किसी थिंग का नाम तो नहीं बता रहे, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज माई नेबर लिव्स इन अ बिग हाउस विद अ लवली गार्डन, ठीक है। तो नेबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर नेबर, इंसान के कई नेबर होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर नेबर, मैंने किसी नेबर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। सो इट इज जस्ट नेबर, इट इज द कॉमन डिनोशन और द कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेबर, ठीक है। तो नेबर इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट कॉमन नाउन इन द सेंटेंस इज हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर हाउस की बात कर रहे हैं, लिव्स इन अ बिग हाउस, लेकिन बिग हाउस तो बहुत लोगों के होते हैं, है ना। एंड हाउस का तो कोई नाम दिया नहीं है कि पारुल्स विला, या फिर जैसे हमारे हीरो हीरोइंस के हाउसेस के नाम होते हैं, बंगलोज के नाम होते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। तो इट्स जस्ट रिटन हाउस, इट्स डिनोटिंग द कॉमन हाउस ऑफ एनी पीपल, एनी मैन, ठीक है। तो हाउस एंड द थर्ड इज गार्डन, तो ये तीनों हमारे कॉमन नाउन है। थर्ड इज कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट कंट्रीज, तो कैमल्स, कैमल हम किसी पर्टिकुलर कैमल की तो बात कर नहीं रहे, कैमल का नाम तो दिया नहीं है ना। तो कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट कंट्रीज, यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए, कैमल्स की, ठीक है। तो कैमल्स वी आर टॉकिंग इन जनरल, एंड डेजर्ट कंट्रीज, ठीक है। डेजर्ट कंट्रीज मतलब जिन कंट्रीज में डेजर्ट्स हैं, ठीक, रेगिस्तान है जिन कंट्रीज में। तो कंट्रीज में भी हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम तो लिखे नहीं कि इंडिया, कोलंबिया, चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका, कुछ भी नहीं, है ना। वी आर जस्ट राइटिंग कंट्री, तो कंट्री क्या शो कर रहा है, इट इज द कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज, ठीक है। इसीलिए ये कॉमन नाउन है, ठीक। अब this you have to keep in mind that common nouns are not written in capital letters, ठीक है। common nouns ऐसे small letters में ही लिखे जाते हैं, unlike proper nouns, proper nouns को हम capital letter में लिखते हैं। the third is collective nouns, तो collective nouns जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, it shows a collection, ठीक है। collective noun represent groups of people, animals and things considered as one complete whole, ठीक है। जैसे जो people हैं, animals हैं, things हैं, जिनका एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, ठीक है, उनको हम लोग एक साथ ग्रुप के तौर पर जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स देखिए, द नॉटी बॉयज वर अटैक्ड बाय अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बीज की एक साथ बात हो रही है, इसीलिए हमने कहा स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज क्या होगा, बॉयज विल बी कॉमन नाउन, ठीक है। तो द नॉटी बॉयज वर अटैक्ड बाय अ स्वार्म ऑफ बीज, बहुत सारे बीज, देयर इज अ ग्रुप ऑफ बीज, सो वी आर सेइंग इट स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। और हर जो ग्रुप होती है ना, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। जैसे स्वार्म ऑफ बीज कहते हैं जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ क्राउड। जब देयर आर मेनी थीव्स और रॉबर्स, ठीक है, उन लोग को कहते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है, गैंग ऑफ थीव्स, मॉब ऑफ रॉबर्स, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। शोल, जब बहुत सारे फिश एक साथ रहते हैं तो उसे शोल ऑफ फिश कहते हैं, ठीक है। तो दैट डिनोट्स अ कलेक्शन, इसीलिए इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बहुत सारे सेम टाइप की चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है। द नॉटी बॉयज वर अटैक्ड बाय अ स्वार्म ऑफ बीज, बहुत सारे बीज ने एक साथ अटैक किया, सो इट इज नोन एज स्वार्म ऑफ बीज। नेक्स्ट इज द एक्साइटेड क्राउड चीयर्ड द लीडर लाउडली, ठीक है। एक्साइटेड क्राउड मतलब बहुत सारे लोग एक साथ थे, क्राउड मीन्स आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग जहाँ एक साथ होते हैं, दैट इज नोन एज क्राउड।
सो द एक्साइटेड क्राउड चीयर्ड द लीडर लाउडली, मतलब कोई लीडर जो भाषण वगैरह कुछ दे रहा था या फिर कोई आया जिसके लिए जो क्राउड थी, जितने वहाँ पे लोग थे, सब बहुत जोर से चीयर किए, ठीक है। फिर तो क्राउड यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन है। द थर्ड एग्जाम्पल इज द पुलिस हैव अरेस्टेड अ गैंग ऑफ कार थीव्स, ठीक है। कुछ ऐसे थीव्स जो कार चोरी करते थे, ठीक है, दे वर कार थीव्स। तो देयर वर मेनी थीव्स, है ना, एक थीव की तो बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट थीव्स, सो इट इज अ गैंग ऑफ कार थीव्स, ठीक है। तो गैंग ऑफ थीव्स हुआ, ठीक, बहुत सारे थीव एक साथ हुए, तो इट इज नोन एज गैंग ऑफ थीव्स। तो यहाँ पे भी हम लोग कई सारे थीव्स की बात करें, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो so today we have studied 3 types of nouns. Tomorrow we will study about material nouns and abstract nouns. Okay. So these are the basically 5 types of nouns. I hope you all have understood the 3 types of nouns today: proper noun, common noun, and collective noun. Okay. So see you tomorrow, students. Take care and have a good day.